The poet wants to tell us about her childhood fear of losing her mother because her mother is ill. That is why she has a fear that she would lose her. First line of the poem is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. In this poem, poetess Kamala Das is there with her mother, and now she is going to her in-laws house. इस कविता में कमला दास अपने एक डर के बारे में बात कर रही है। वो डर है अपनी माँ को खो देने का डर। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है वो बचपन से जब से उसने देखा है तब से ही बीमार देखा है। और आज जो कवियत्री है वो अपने मायके आई हुई है और वो अपने ससुराल जा रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, पहली लाइन है कि अपने पेरेंट्स के घर से मैं जा रही हूँ अपने ससुराल में, एंड माय मदर इज देयर बिसाइड मी। डॉज ओपन माउथ, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। कार में मेरी माँ बैठी है बराबर में सीट पर। डॉज ऊँग रही है, उदास है। ओपन माउथ, मुंह जैसे नींद आई हुई है, मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। कॉर्पस मीन्स डेड बॉडी। माँ का जो चेहरा है एसेन, पीला, जर्जर, जैसे डेड बॉडी होती है ऐसे ही माँ का चेहरा भी हुआ है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और माँ को इस तरीके से देख करके दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, कि माँ जितनी बूढ़ी एक औरत हो सकती है शायद उससे बूढ़ी अब नहीं हो पाएगी। बट पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने माँ के साइड से चेहरा हटा करके दूसरी साइड मीन्स खिड़की की साइड चेहरा कर लिया, ताकि मैं माँ के चेहरे को देखकर उदास ना हूं और मैं बाहर के दृश्य देखने लगी। समझ में आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है भाई? बच्चों समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें जो कवियत्री है शी इज देयर with her mother and now going to her in-laws house, and she is in the car because she has to go up to airport, and mother is there to see her off. That is why mother is sitting beside her in the car. And when the poetess looked at her mother's face is just like a corpse, without vitality, without energy and strength. And negative thoughts came in the mind of the poetess. That is why she wanted to remain positive, and she means poetess looked other side means the side of window. And when the poetess looked out of the window, there was energy, there was vitality, because young trees sprinting, जो छोटे छोटे पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। Actually, trees were not sprinting, car was running, but looking just like as trees were sprinting. There is a comparison between the scene outside the car and inside the car. Inside the car, mother is there. Mother is now a symbol of uh, lethargy, laziness, whereas the scene outside is full of activity. Then the married children spilling out of their homes. Then फिर कुछ बच्चे भागते हुए अपने घरों से आए। And once again there is a comparison between childhood and old age. Inside the car, mother is there. Mother is old, without any energy, without any, you can say, strength. Whereas children are outside, who are running, who are playing. Children are full of energy, vitality, positivity. Means
The poetess wants to make a comparison between these two situations, inside the car and outside the car. Anyhow, but after the airport security check, then both mother and daughter poetess, they were at airport. There was security check, and mother was there at security check because she would not be allowed. जब कोई किसी को सी ऑफ करने जाता है तो एक लिमिट तक ही वो रहता है, उसके बाद जिसको जाना होता है वो अंदर जाता है। तो पोइटेस की जो मदर है वो सिक्योरिटी चेक पर खड़ी हो गई, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और वो कुछ दूरी पर खड़ी हो गई और मैं आगे निकली। फिर एक बार जाते जाते से फिर मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, और मैंने अपनी माँ के पीले पड़े चेहरे को देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, माँ का चेहरा ऐसा हुआ हुआ था जैसे कि सर्दी की ऋतु में चांद होता है। It is also a similarity between the face of mother and between winter's moon. In winter, as you know, because of fog, there is no energy, there is no light in moon. And at the same time, winter is the last phase of the year and old age is the last phase of life. यहाँ पर कवि ने एक समानता दिखाई है। सर्दी की ऋतु में जो चांद होता है उसके अंदर एक प्रकाश नहीं होता क्योंकि कोहरे के कारण चांद ढक जाता है, और सर्दी एक साल का आखिरी सीजन है। इसी तरीके से बुढ़ापा जो है जो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, और बुढ़ापे में भी कोई चेहरे पर एनर्जी नहीं होती, कोई चेहरे पर रोशनी नहीं होती। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और माँ के इस तरीके के चेहरे को देख करके फिर मेरे मन में वही जाना पहचाना एक दर्द, बचपन से माय चाइल्डहुड फियर्स, जब से मैंने माँ को देखा है वैसा ही डर फिर आ गया। क्या कि पता नहीं मैं माँ को मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन कहना तो फॉर्मल वर्ड्स तो यही है, सी यू सून अम्मा। क्यों? क्योंकि हम किसी को ये तो नहीं कह सकते पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इससे तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी। इसलिए आई यूज्ड फॉर्मल वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराई भी क्योंकि मुस्कुराना बनता है। लेकिन यहाँ पर मेरा मुस्कुराहट बिल्कुल उस गाने की तरह थी, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो बिल्कुल वैसी ही मेरी मुस्कुराहट थी, बिकॉज इनवर्डली आई वाज नॉट हैप्पी, इनवर्डली आई हैव नो होप टू मीट हर अगेन। समझ में आ रही है बच्चों बात? सबको Yes, समझ में sir. आई भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि इस पोइम में हमने यही पढ़ा कि जो पोइटेस है, पोइटेस जो अपने मायके से अपने ससुराल में आई हुई है और माँ उसके साथ बैठी है, और 2 बार जो कवियत्री है उसने कंपैरिजन किया है बाहर का दृश्य। पहला दृश्य जो जवान पेड़ है भागते हुए दिखाई दिए, और दूसरा बच्चों के साथ कंपैरिजन किया जो कि दोनों की अवस्था बिल्कुल भिन्न है। बच्चे युवा एनर्जी और माँ बूढ़ी। फिर एक समानता दिखाई लेट विंटर मून से कि जो कि जैसे सर्दी में चांद अपनी एनर्जी खो देता है, ऐसे ही माँ ने भी अपनी एनर्जी खो दी है। ये पोइम थी। सबको समझ में आ गई भाई? हेलो, सबको Yes, समझ में आई? sir. आगे सर अच्छे से। अच्छा, मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपके टेक्सटुअल भी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील? पोइटेस के मन में क्या दर्द था? It was fear that she would lose her mother because her mother was ill and sick. She has become old. समझ में आ गया भाई? Yes, sir. सभी बोलिए भाई, आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड क्वेश्चन है, पोइट यूज यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, व्हाट डज इट मीन? कि पेड़ भाग रहे हैं,
Actually, trees were not running. It is car which is Car. running. Why poet uses such symbol? Because she wanted to show a comparison between the scene outside and inside the car. Outside the car, there is vitality and energy, whereas inside the car, there is lethargy, There was there is no energy. समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. हाँ, पोइट Yes, जो ये कहना sir. चाहता है कि कार के बाहर ऊर्जा है, उत्साह है, जोश है, उमंग है, और कार के अंदर माँ है, माँ का चेहरा क्योंकि बूढ़ा हो गया है और जो कोई एनर्जी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है. समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर रनिंग, व्हाई डज द पोइट यूज दिस वन? हमने जैसे पढ़ा ना कि बच्चे भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? Once again, a comparison between the young age or childhood and old age. Young age is an age of energy, vitality, strength, courageousness, zeal, and old age is an age where there is no energy, no light, no strength, etc. समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, यानी sir. कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उत्साह होता है, जोश होता है, उमंग होती है, जबकि बुढ़ापा जो होता है उसके अंदर कोई जोश नहीं होता, कोई उमंग नहीं होती. अब एक क्वेश्चन मिलेगा, मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, कि माँ का चेहरा लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन किया गया है. आप बताएंगे क्यों? Sir, because it bring out the similarity of aging and decay. She was aged like. Yes, because there is a similarity. In winter, moon is not so bright because of fog, whereas and at the same time old age, in old age there is no light on the face of a person. Yes, sir. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. What do the Sir. parting Yes, words sir. signify? जो लास्ट में कहा parting, यानी कि जो बिछड़ते हुए जो शब्द कहे, कौन से कहे थे? See you, Amma. हाँ, see you soon, See you अम्मा. soon, Amma. Yes, yes. See you soon. इससे क्या पता चलता है? That she want to meet her mother again. She has no hope, but formally she said, "See you soon, Amma." These are only formal words, but inwardly, poetess has no hope to meet her again, and she only weeping inside, but outwardly she was smiling. समझ में आ गया आपको? पोइम समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. तो यही हमारी पोइम थी. मैं इसी को जो ना आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा, और ये फर्स्ट पोइम हमारी. किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है. No, sir, thank you. Everything is clearly understood. ओके, Yes, sir. थैंक्स स्टूडेंट्स. हम मिलते रहेंगे, कभी ऑनलाइन मिलते रहेंगे, कभी मैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा. जैसा भी पॉसिबल होता रहेगा वैसा हम करते रहेंगे. Okay, sir. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी किसी भी तरीके की. Okay, sir. Okay, Okay. sir, thank you. Thank you so Okay, much. everybody. Thank you. Thanks. Thank you.